So first of all, you must know what is solution. है ना? Solution is what? What is this solution? Mixture of solid and solvent solids. Homogeneous mixture, not only mixture. Homogeneous mixture. What is solution? Homogeneous mixture. So what is solution? It is the homogeneous mixture. Homogeneous mixture of solute and solvent. Solute and solvent. Okay. In a solution, a particular substance is in excess. That is called solvent. And whatever the components that is less than that particular quantity is known as solute. So a particular solution may have more than one solute, but there will be only one solvent. Just like ORS gold, ORS solution. ORS contains sugar, common salt, certain other vitamin minerals, and everything you dissolve into a water. So water is solvent, whereas so many solutes are there. Understood? So it may contain more than one solute, but there will be only one solvent. तो किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट होगा, जिसमें कि सॉल्वेंट एक ही होगा, जो सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में है वो होगा सॉल्वेंट, और उससे कम क्वांटिटी में जो भी बाकी सारे सॉल्यूट कर रहे हैं. पानी है, उसमें नमक भी डाल दिए, चीनी भी डाल दिए, तो पानी जो है सॉल्वेंट हो गया, नमक और चीनी जो है सॉल्यूट हो गया. समझ गए? उसमें और भी कुछ डाल देंगे वो भी सॉल्यूट होगा. ठीक है? अंडरस्टूड? So solution is nothing but it's a homogeneous mixture. There are two types of mixture, homogeneous mixture and heterogeneous mixture. So only homogeneous mixtures are called solution, or sometimes it may be written as true solution. So whether you say true solution or solution, both have same meaning. Understood? So solute plus solvent is the solution. Now what is concentration? Concentration is the amount of solute present in the given amount of solution. Okay? What is concentration? Concentration tells you the amount of solute. Concentration tells you the amount of solvent present in given amount of solvent or solution. ठीक है ना? मतलब क्या हो गया कि किसी जब हम कॉन्सेंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के बाद बहुत सारा मोडालिटी है, तो सबसे पहले कॉन्सेंट्रेशन जानेंगे. क्या है कॉन्सेंट्रेशन? बोल दिया गया मतलब ये बता रहा है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट. अमाउंट ऑफ सॉल्यूट बता रहा है कि कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है एक फिक्स्ड क्वांटिटी में, 100 ग्राम में, 100 ml में. एक कोई फिक्स्ड क्वांटिटी हम ले लेंगे, उस फिक्स्ड क्वांटिटी में देखेंगे कि फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट या फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन है. फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट लेंगे या फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन लेंगे, और उस फिक्स्ड क्वांटिटी में देखेंगे कि कितना सॉल्यूट उसमें है. ठीक है ना? वही अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज नोन एज कॉन्सेंट्रेशन. अंडरस्टूड व्हाट इज कॉन्सेंट्रेशन? सो कॉन्सेंट्रेशन इज व्हाट? अमाउंट और क्वांटिटी, है ना? amount or quantity of various solute present in fixed quantity of solvent or solution. Understood? So this is the concentration. So now you know what is concentration, what is solution. Clear? Understood properly? Note it down everybody.
certain way to express the concentration which is already taught in class 10, that is the mass percentage, volume percentage, that I will not discuss here. It is already discussed in class 9, mass percentage, volume percentage. Okay, so these two things I am not going to discuss here. Sir, Mass only formula. formula is the same thing. Mass by solute upon mass by solution into 100. Okay, volume of solute upon volume of solution into 100. Clear? Mass of the solute upon Mass. volume of the solution into 100. This is called mass volume percentage. Yes. Understood? Now the various ways are there to express. First we will discuss the molarity. Okay. The first way to express the concentration of solution, that is called molarity. Symbol of molarity is capital M. Capital M denotes the molarity. Now what is molarity? What is molarity? Molarity tells you the number of moles of the solute present in 1 liter of a solution. What is molarity? Number of moles of the solute present in 1 liter of solution. Okay? So molarity tells you such that number of moles of solute dissolved in 1 liter or 1000 ml of solution. Understood? This is the definition of molarity. ठीक है? समझ में आ गया? Yes. So now I will write it in mathematically. Molarity, which is denoted by N, equal to number of moles of solute upon volume of solution. Volume of solution in liter. This is the molarity. Okay. So what would be the units? Whatever it will come, it will be moles per liter. Moles per liter. ठीक है. यूनिट क्या होगा? मोल पर लीटर. और सिंपली अगर हम m भी लिख देंगे ना, तो ये भी हो जाएगा मोल पर लीटर. If you put capital M, then it will become mole per liter. Understood? Yes. Now I'll express it in another way. यहाँ हमने क्या लिखा? मोलैरिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट. ठीक है. हम लोग जब लेबोरेटरी में काम करते हैं तो हम लोग जो सॉल्यूशन लेते हैं वो लोग लीटर में जल्दी लेते नहीं हैं. हम लोग ml में लेते हैं, है ना. 10 ml, 20 ml, 100 ml, 250 ml तक में एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं. जो भी एक्सपेरिमेंट करते हैं हम लोग ml में करते हैं. जब इंडस्ट्री में काम होता है तो वहाँ लीटर में चलता है.
है ना, आई बात समझ में। लेकिन यहाँ तो हम लोग ml में ही काम करेंगे, मिलीलीटर में ही काम करेंगे ना, तो इसलिए हम मिलीलीटर में लेंगे तो कैसे हम एक्सप्रेस करेंगे इस फॉर्मूला, ठीक है। सो मोलैरिटी and the number of mole is represented by a small n. So number of moles of the solute. This is in short you can write number of moles of the solute. This is number of moles of the solute. Then volume in ml. जनरली हम लोग ml में लेते हैं, लेकिन फॉर्मूला तो लीटर में, so it must be divided by 1000 to make it liter, ठीक है। हाँ आया समझ में। अब ये लीटर हो गया, 1000 से डिवाइड कर दिए तो फॉर्मूला हो गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन ml, ठीक है, इनटू 1000। दिस इज द मोस्ट कॉमन फॉर्मूला फॉर द मोलैरिटी, ठीक है, क्योंकि हमको तो लीटर में बदलना है, लेकिन एक्सपेरिमेंट हम लोग ml में करते हैं, तो उसको लीटर में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड कर दिए, है ना। वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन ml, ठीक है, आई बात समझ में, क्लियर। तो चूंकि हम ml में ले रहे हैं, लेकिन डेफिनेशन के हिसाब से लीटर में हमको कैलकुलेट करना है, तो ml को लीटर में, मिली लीटर को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए इट मस्ट बी डिवाइडेड बाय 1000, ठीक है, आई बात समझ में। बिकॉज 1 ml इक्वल टू 1/1000 लीटर, 1 लीटर इक्वल टू 1000 ml, 1 लीटर इक्वल टू 1000 ml, सो 1 ml इक्वल टू 1/1000 लीटर, ठीक है ना, आया बात समझ में। तो ये तो हो गया कि हम सिंपल एक सॉल्यूशन बनाए और उसका मोलैरिटी पता कर लेंगे, नंबर ऑफ मोल्स पता कर लेंगे और इस फॉर्मूला पर बिठा देंगे, हमारा मोलैरिटी आ जाएगा, ठीक है। अब ऑलरेडी सॉल्यूशन बना हुआ है, उसमें हम पानी मिला देंगे, है ना, गाढ़ा सॉल्यूशन बन गया, उसको हम पतला कर देंगे, तो मोलैरिटी में क्या चेंज होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं मोलैरिटी इक्वेशन, और हम लोग मोलैरिटी में ही पढ़ेंगे मोलैरिटी इक्वेशन, मोलैरिटी इक्वेशन, ठीक है। और इसी को हम लोग बोलते हैं डाइल्यूशन फार्मूला, इसी को हम लोग बोलते हैं डाइल्यूशन फार्मूला, डाइल्यूशन फार्मूला, ठीक है। अब एक सॉल्यूशन लिया हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं सॉल्यूशन, सॉल्यूशन 1, सॉल्यूशन 1 लिए, हाँ, और इसमें हम वाटर मिला दिए, ठीक है, चीनी का शरबत दे दिए, हाँ, गेस्ट आ गया अचानक 2-4 और, तो क्या किए, पानी डाल दिए 1 बाल्टी उसमें, फिर और बनाने में टाइम लगेगा, मेहनत लगेगा, मान लो चीनी नहीं है घर में, तो क्या करेंगे, हैं, तो क्या करेंगे, अब पिलाना सबको है, एक साथ सारे गेस्ट हैं, तो हम नहीं ना एक को देंगे 2-4 को छोड़ देंगे, तो क्या करेंगे, 1 बाल्टी पानी डाल देंगे उसमें, हैं, उसका शरबत दे देंगे सबको, आया बात समझ के कि नहीं। तो सॉल्यूशन बदल गया कि नहीं, हाँ, तो सॉल्यूशन 1 से हो जाएगा अब ये सॉल्यूशन 2, सॉल्यूशन 2 हो गया, मतलब क्या है, अगर ये कॉन्सेंट्रेटेड है तो ये डाइल्यूटेड हो गया, हाँ, हाँ, मान लो कि ये सॉल्यूशन है, इसका मोलैरिटी है m1, तो इसका मोलैरिटी हम मान लेते हैं कि m1 है, हाँ, मोलैरिटी m1 है, और वॉल्यूम मान लेते हैं इसका v1, ठीक है। मान लो 1 लीटर बना, ये 1 लीटर है, 1 लीटर और पानी डाल दूँ तो 2 लीटर हो जाए, तो वॉल्यूम बदलेगा, हाँ, और
फॉर्मूला क्या है? वॉल्यूम बदल जाएगा तो मोलैरिटी बदलेगा कि नहीं? मोलैरिटी घट जाएगा क्योंकि वॉल्यूम नीचे है ना, वॉल्यूम डिनोमिनेटर में है ना, तो डिनोमिनेटर वाला कोई चीज़ बढ़ेगा, इसमें कोई चेंज नहीं करना है, सॉलिड में हम कोई चेंज नहीं करना है, चीनी उतना ही है, हम चीनी उससे निकाले नहीं है, और चीनी है ही नहीं तो देंगे कहाँ से? सब चीनी खत्म हो गया, समझ गया कि नहीं? घर का सारा चीनी दे चुके हैं, अब हम क्या करेंगे? बगल में दुकान नहीं है, ठीक है? हैं? तो अब क्या करेंगे हम? उसमें पानी डालेंगे, तो ये तो उतना ही रहेगा, ये तो ना चेंज नहीं होने वाला है। हम उसमें पानी डालते हैं, क्या होगा? मिठास कम हो जाएगा, शरबत तो रहेगा ये। हाँ, पहले पूरा मीठा बनाए थे कि मुँह में भी चीटी लग जाए, ठीक है? हाँ, अब ऐसा वहाँ पानी डाल देंगे कि चीटी को भी पता नहीं चलेगा कि मिठास है कि नहीं, ठीक है? हाँ, तो पानी डाल दिए, तो पानी डालेंगे तो यही बढ़ेगा डिनोमिनेटर में, तो डिनोमिनेटर में बढ़ेगा तो ये घटेगा कि नहीं? तो मोलैरिटी चेंज हो जाएगी, मोलैरिटी चेंज होगा ना, समझ में आया कि नहीं कि पानी डालने से मोलैरिटी चेंज होगा, डाइल्यूट करने से मोलैरिटी चेंज होगा, वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, मोलैरिटी डिक्रीज कर जाएगा, वॉल्यूम इंक्रीज कर जाएगा। 1 लीटर है तो 2 लीटर हो गया, 2 लीटर से 3 लीटर बढ़ा दिए, लेकिन मोलैरिटी घटते जाएगा, वॉल्यूम बढ़ेगा और मोलैरिटी डिक्रीज होगा जब हम उसको डाइल्यूट करेंगे। तो आगे बात समझ में? हाँ, तो मान लेते हैं कितना हो गया मोलैरिटी ये मालूम नहीं है, अपने मन से लिख देते हैं इसका मोलैरिटी M2 हो गया, नया जो सॉल्यूशन बना। हाँ, और ये बढ़ गया, ये V2 हो गया, ठीक है ना? यही चीज़ बोलना, मोलैरिटी डिक्रीज कर गया और वॉल्यूम इंक्रीज कर गया, लेकिन नंबर ऑफ मोल्स तो सेम रहेगा। हाँ, अब इस फॉर्मूला को एडजस्ट करें, इस फॉर्मूला से ही हम एक फॉर्मूला बनाएंगे। फॉर्मूला क्या है हमारे पास? m इक्वल टू m/v, यही है ना फॉर्मूला मोलैरिटी का। शॉर्ट में फॉर्मूला अगर लिखेंगे तो ही लिखेंगे, ml कुछ नहीं लिखना है, लीटर कुछ नहीं, शॉर्ट में अगर लिखेंगे तो m इक्वल टू n/v होगा, m इक्वल टू n/v होगा। हम 100, 1000 वो नंबर हटा दिए, सिर्फ जो है वेरिएबल्स रखें, यही ना होगा फॉर्मूला, m इक्वल टू n/v। तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा? m इंटू v, n इक्वल टू m/v, m इंटू v होगा। हाँ, तो यहाँ भी ये दोनों m और v है, यहाँ भी m और v है, ये तो हम चेंज किए नहीं नंबर ऑफ मोल्स, क्योंकि चीनी ना बढ़ाए है ना घटाए, चीनी को ना तो हम बढ़ाए और ना ही चीनी उससे निकाले, तो चीनी जितना था उतने हो गया, लेकिन अब ज़्यादा आदमी में चीनी बढ़ गया, तो इसलिए सबको कम मीठा लगेगा। चीनी उतना ही है, आदमी बढ़ गया, पहले 4 आदमी था तो सबको मीठा मीठा लगता, अब 10 आदमी हो गया तो अब मिठास कम लगेगा ना, क्योंकि उतना ही चीनी को 10 आदमी के बीच में बांट दिए, ठीक है? आई बात समझ में? लेकिन टोटल चीनी उतना ही हो गया, टोटल चीनी कितना है? उतना ही है, तो चीनी तो उतना ही है नहीं, नंबर ऑफ मोल्स सेम रह गया, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स तो डिपेंड करता है उसके मास के ऊपर, उसके मोलार मास के ऊपर, तो ना तो उसका मास चेंज किए हैं, और मोलार मास तो हम चेंज कर नहीं सकते। एटॉमिक मास किसी का चेंज होगा, मॉलिक्यूलर मास किसी का चेंज होगा, नहीं होगा तो फिक्स्ड होता है, और हम मास भी चेंज नहीं किए, तो नंबर ऑफ मोल्स तो उतना ही रहेगा। तो n इक्वल टू mv हो गया, यहाँ भी तो होगा n इक्वल टू m1 v1, नंबर ऑफ मोल्स, यहाँ भी नंबर ऑफ मोल्स n ही रहेगा, m2 v2, नंबर ऑफ मोल्स तो दोनों जगह सेम रहेगा ना। और n का फॉर्मूला क्या है? mv, यहाँ हो जाएगा m1 v1, यहाँ हो जाएगा m2 v2, तो दोनों तो एक ही चीज़ है, तो हम लिख सकते हैं ना m1 v1 इक्वल टू m2 v2, ठीक है? तो अगर थोड़ा सा भी वॉल्यूम चेंज करेंगे तो मोलैरिटी में चेंज हो जाएगा, तो वॉल्यूम में चेंज होगा है तो हम जान रहे हैं कितना चेंज कर रहे हैं, क्योंकि उसको तो आराम से हम नाप सकते हैं, है ना? 1 लीटर को 2 लीटर 10 लीटर जितना बनाना बना सकते हैं, तो v1 v2 तो हम आराम से पता कर लेंगे। हमको m1 m2 का ही प्रॉब्लम है ना,
तो M1 हम पहले से अगर कैलकुलेट किए हुए हैं तो M2 पता चल जाएगा इस फॉर्मूला से। इसमें कोई भी 3 पता रहेगा, 4 टर्मिनोलॉजी है, M1, B1, M2, B2, 4 वेरिएबल्स हैं इसमें से 3 वेरिएबल अगर मालूम है तो चौथा वेरिएबल हमको पता चल जाएगा। कोई भी चौथा वेरिएबल पता चल जाएगा अगर बाकी 3 वेरिएबल्स मालूम है। इसी को हम लोग बोलते हैं डाइल्यूशन फॉर्मूला और मोलैरिटी इक्वेशन। दिस इज कॉल्ड M1 B1 इक्वल टू M2 B2 इज कॉल्ड मोलैरिटी इक्वेशन और डाइल्यूशन फॉर्मूला। अंडरस्टूड? समझ में आ गया? Yes, sir. हाँ Yes, sir. ठीक, नोटेड डाउन? No, sir. चलो नोट डाउन करो। अब हम लोग फिर से मोलैरिटी पढ़ेंगे दूसरे सिचुएशन में। लास्ट सिचुएशन में क्या पढ़े थे? सेम सॉल्यूशन मेड डाइल्यूटेड, सम वाटर इज एडेड टू द कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन एंड मेड इट टू डाइल्यूट, है ना? तो उसको हम लोग डाइल्यूशन फॉर्मूला बोलते हैं। अब होगा कि हम 2 सॉल्यूशन बनाएंगे सेम सब्सटेंस का, चीनी का शरबत, ठीक है, इधर ये तीनों मिलके बनाएंगे और फिर तुम दोनों मिलके सबको चीनी का शरबत ही बनाने देंगे, उसको भी दे देंगे, ठीक है? अपना मन से डालेगा चीनी, तीनों का मिठास सेम होगा क्या? No, sir. 3 ग्रुप में है ना, तीनों ग्रुप को बोलेंगे बनाओ शरबत। कुछ नहीं बताएंगे कितना पानी लेना है और कितना चीनी लेना है, हम नहीं बताएंगे, खाली बोलेंगे चीनी का शरबत बनाओ। तो तीनों बनाओगे अपना मन से, क्या तीनों का मिठास सेम होगा? तो तीनों शरबत क्या है? सेम सब्सटेंस का बना हुआ है, शुगर का ही। तीनों ही सॉल्यूशन सेम है, तीनों ही होमोजेनियस सॉल्यूशन है, लेकिन तीनों का कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट है। लेकिन सेम चीज़ का सॉल्यूशन है, शुगर सॉल्यूशन है, तीनों शुगर सॉल्यूशन है, बट द कॉन्सेंट्रेशन इज डिफरेंट। कॉन्सेंट्रेशन इज डिफरेंट। अब इस तीनों को मिला देंगे तो मिठास क्या पहले जैसा रहेगा? अब तीनों मिलाएंगे तो एक सॉल्यूशन बन जाएगा, हाँ? लेकिन वो जो चौथा सॉल्यूशन बनेगा वो तीनों से डिफरेंट होगा, उसका जो मिठास होगा तीनों से डिफरेंट होगा, तीनों में से किसी से नहीं मिलेगा, ठीक है ना? इसमें कहता है कि क्या चेंज होगा? मोलैरिटी। जो फाइनल बना चौथा सॉल्यूशन उसका मोलैरिटी कितना होगा, ठीक है? या वॉल्यूम कितना होगा? वॉल्यूम तो पता चल जाएगा, तीनों को जोड़ देंगे, लेकिन मोलैरिटी तो नहीं पता चलेगा, उसके लिए कैलकुलेशन करना पड़ेगा। अगर तीनों का मोलैरिटी मालूम रहेगा तब ना। अगर तीनों सॉल्यूशन जो अलग अलग बनाए पहले उसका मोलैरिटी पता करेंगे, क्योंकि तुम तीनों को मालूम है कि कितना चीनी डाले हो कितना पानी डाले हो, चीनी कितना उसमें डाले और कितना पानी डाले मालूम है, तो सबको बोलेंगे सब अपना अपना मोलैरिटी लिखो, अपना अपना वॉल्यूम लिखो, ठीक है ना? तो लिख देगा। उसके बाद हम तीनों को मिक्स करेंगे, फिर वॉल्यूम मेजर कर लेंगे और अब मोलैरिटी पता करेंगे। फाइनल मोलैरिटी तीनों सॉल्यूशन मिलाने के बाद जो चौथा सॉल्यूशन बन गया, वॉल्यूम तो पता चल जाएगा, तीनों को ऐड कर देंगे, वॉल्यूम मिल गया। मोलैरिटी तीनों ऐड करने से पता नहीं चलेगा, मोलैरिटी वैसे चेंज थोड़ी होता है, हाँ? तो मोलैरिटी के लिए कैलकुलेशन सबका मोलैरिटी को अलग अलग देखना पड़ेगा, ठीक है ना? और जोड़ने से मोलैरिटी आने वाला नहीं है, सारे का नंबर ऑफ मोल्स जो है अलग से पता करेंगे। समझ में आ गया? तो कैसे होगा? चलो हम यहाँ पर लेते हैं सॉल्यूशन, सॉल्यूशन 1 ले लेते हैं और सॉल्यूशन शुगर सॉल्यूशन लो या कोई सॉल्यूशन लो, शुगर सॉल्यूशन 1, शुगर सॉल्यूशन 2, 2 में ही बनाते हैं, तुम्हारा मन जितना लेना हो ले सकते हो, ठीक है? इस दोनों को ऐड करेंगे, इस दोनों को ऐड करेंगे तब बनेगा सॉल्यूशन 3, शुगर सॉल्यूशन 3 बनेगा। या 3 नहीं दे करके सिर्फ शुगर सॉल्यूशन में लिख सकते हो, फाइनल हो गया वो, ठीक है? 3 नहीं लिखते हैं, फाइनल है ना? दोनों को मिलाएंगे तो एक ही बनेगा ना,
इसलिए अलग अलग आप नाम देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तीनों को जब मिलाएंगे तो तीनों क्या है, अब नया आ गया। अब तो तीनों में से कोई एग्जिस्ट कर नहीं रहा है, दोनों में से कोई एग्जिस्ट कर नहीं रहा है, एक नया आ गया सॉल्यूशन, इसलिए उसको हम सिर्फ शुगर सॉल्यूशन लिख दिए। ठीक है, आ गया समझ में? मान लो इस सॉल्यूशन का मोलैरिटी M1 है, ठीक है, और वॉल्यूम जो है V1, मोलैरिटी M1 हो गया और वॉल्यूम V1। इस सॉल्यूशन का मोलैरिटी M2 है और वॉल्यूम जो है V2 है। ठीक है, तब इसका मोलैरिटी तो पता नहीं चलेगा, लेकिन वॉल्यूम तो इसका मोलैरिटी मान लेते हैं कि M हो गया और इसका वॉल्यूम V हो गया। ठीक है, मान लिए हैं, तो वॉल्यूम तो पता चल जाएगा क्लियरली, है ना। यार V इक्वल टू V1 प्लस V2 होगा, लेकिन M इक्वल टू M1 M2 होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो, है ना। कई बात समझ में, M इक्वल टू M1 प्लस M2 हो जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, हम लोग नहीं भी हो सकता पता चलेगा। ठीक है ना, तो हम कैसे करेंगे कैलकुलेशन? अब एक बात मान लेना है, ठीक है, ये समझ गया। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, इसमें हम N1 हो गया, दोनों चीनी का शरबत है, दोनों का मिठास अलग है, तो अमाउंट चीनी का अलग अलग है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट भी डिफरेंट होगा ना। इसमें मान लेते हैं कि हम N2 लिए, इसमें N2 लिए, तो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स हो गया M मान लेते हैं फाइनल में। ठीक है, अब मान लो चीनी यहाँ 1 किलो दिए थे, यहाँ 2 किलो दिए थे, दोनों को मिला दिए थे 3 किलो होगा, जिसका मतलब उसमें 3 किलो है। अगर ये 1 किलो है, ये चीनी 2 किलो है, ये शरबत बनाने में 2 किलो चीनी यूज़ किए, ये शरबत बनाने में 1 किलो चीनी यूज़ किए, तो चीनी का अमाउंट तो 1 किलो है कि 1 ही किलो रहेगा, 2 किलो है तो 2 किलो रहेगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा 3 किलो रहेगा। चीनी का अमाउंट तो चेंज नहीं होगा, मास तो चेंज नहीं होगा, तो जब मास चेंज नहीं होगा तो नंबर ऑफ मोल्स भी चेंज नहीं होगा, यानी N इक्वल टू N1 प्लस M2 आ जाएगा। जैसे V इक्वल टू V1 प्लस V2 है, उसी तरह से N इक्वल टू N1 प्लस N2 हो जाएगा कि नहीं? ठीक है, यानी टोटल नंबर ऑफ मोल्स बिफोर मिक्सिंग जितना है, आफ्टर मिक्सिंग भी उतना ही है। नंबर ऑफ मोल्स में कोई चेंज नहीं हो रहा है। जब नंबर ऑफ मोल्स में चेंज नहीं हो रहा है तो मोलैरिटी में चेंज तो होगा, लेकिन नंबर ऑफ मोल्स सेम रहेगा। इसलिए नंबर ऑफ इस दोनों को जोड़ करके हम मोलैरिटी सेम है ये नहीं कह सकते, नंबर ऑफ मोल्स बदल, क्योंकि दोनों का जोड़ा हुआ है। ठीक है, फिर हम मोलैरिटी वहाँ निकालेंगे, आगे बात समझ में, हाँ, लेकिन नंबर ऑफ मोल्स तो सेम रहेगा। ठीक है, यहाँ पर N1 इक्वल टू M1 V1 होगा, होगा कि नहीं? यहाँ पर N2 इक्वल टू M2 V2 होगा, हाँ? अब यहाँ पर जो N है, N इक्वल टू क्या होगा? N इक्वल टू MB होगा, N इक्वल टू MB। ठीक है, तो इस दोनों को जोड़ेंगे तभी वो आएगा, ये फॉर्मूला यूज होगा ना। तो N कितना हो गया? MB, N1 कितना हो गया? M1 V1, N2 कितना हो गया? M2 V2। समझ में आया? हाँ,
समझ में आ गया ना? सर लेकिन हाँ इसमें मोलैरिटी का इसमें तो N1 का वैल्यू कितना है? हाँ? N2 का वैल्यू कितना है? और N का वैल्यू कितना है? तो फॉर्मूला हमारा ही ना है, तो फॉर्मूला को रिप्लेस कर दिया, सबका वैल्यू पुट कर दिए। N का वैल्यू MB है, N1 का वैल्यू M1V1 है, N2 का वैल्यू M2V2 है, जो वैल्यू हम पुट कर दिए ना। उसके बाद और एक बात होगा, V के बदले हम लिख सकते हैं V1 प्लस V2 लिख सकते हैं ना, हाँ, इक्वल टू M1 V1 प्लस M2 V2। समझ में आ गया? यही ना फॉर्मूला होगा, हाँ। तो फाइनल फॉर्मूला ये हो गया, मोलैरिटी ऑफ ए मिक्सचर ऑफ द टू सॉल्यूशन ऑफ सेम सब्सटेंस। सेम सब्सटेंस यहाँ हम लोग चीनी लिए, यानी सेम सब्सटेंस का रहेगा अलग अलग सॉल्यूशन, तभी ये फॉर्मूला वैलिड है। अब एक शरबत चीनी है, दूसरा शरबत नमक है, तब ये फॉर्मूला नहीं चलेगा। हाँ हाँ, सब चेंज हो जाएगा ना। अगर एक सॉल्यूशन चीनी का है, दूसरा सॉल्यूशन नमक है, आप दोनों मिलाएंगे, तब जो तीसरा सॉल्यूशन बनेगा उसके लिए ये फॉर्मूला वैलिड नहीं होगा। चीनी को चीनी के साथ ही मिलाएंगे, नमक को नमक के साथ मिलाएंगे, तब ये फॉर्मूला होगा। और जब अलग अलग चीज़ मिलाएंगे तो उसके लिए फॉर्मूला कोई नहीं है, उसके लिए दिमाग से कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ठीक है, आगे बात समझ में अंडरस्टूड प्रॉपरली?